लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कामी गांव से। कामी गांव में देवेंद्र का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें न्यूज़ पर। ये कामी गांव की तस्वीरें हैं देवेंद्र काजान का। यहाँ पर जबरदस्त स्वागत देखने को मिल रहा है कामी की जनता। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. तरफ मोड़ ले रही है। यहाँ पर ये युवा जो है किस तरीके से लोगों के दिलों में जगह बना रहा है और लोग जो है उनका तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं भारी संख्या में काम के बावजूद जो है महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं। यहाँ पे भारी संख्या में युवा भी मौजूद हैं और लगातार जो है 1 घंटे से जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने इस बेटे की आवाज़, अपने बेटे की बात सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे सम्मान की पगड़ी पहनाने के लिए गांव में सीताराम पंडित जी जो है वो यहाँ पर पगड़ी पहनाकर देवेंद्र देवा को भरोसा दिलाते हुए यहाँ कितना जबरदस्त लोग यहाँ पर जो हुटिंग करके लोग इस समर्थन को अपना जता रहे हैं। और आपके मान सम्मान में इस गांव के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं। तालियों की गूंज, आपका आशीर्वाद, आपके बेटे, आपके भाई इस समाज सेवी को ताकत देने का काम करता है। एक अलग ही मैसेज जो है देवेंद्र काजान यहाँ पर
अभी दे हमारे रहे बीच हैं। में एक अलग ही माहौल क्रिएट किया गया है लोगों के द्वारा यहाँ पर। अभी हालांकि दूसरी पार्टियों के टिकट नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ एक तरफा सा माहौल जो है देवेंद्र कादियान ने अपने प्रचार के माध्यम से बनाया हुआ है। यहाँ 11,000 की माला के साथ देवेंद्र कादियान का स्वागत जो है गाँव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। की सरदारी का, इस मातृ शक्ति का, युवा साथियों का एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने अपने बेटे को ताकत देने का काम किया, तालियां बजाते हुए लोग और दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। बड़ी माला के लोग जो है साथ घरों के अंदर से भाई को ताकत अपने देने भाई का अपने काम बेटे करेंगे, को यहाँ उनका मान देखना सम्मान चाहते बढ़ाएंगे। हैं। तो देवेंद्र कादियान की सादगी जो है वो यहाँ देखते ही बनती है। वो किसी नेता की तरह जो है सूट ना डाल के पैंट शर्ट में सिंपल रहते हैं और सभी से मिलते हैं। इनके भाव अलग ही दिखाई देते हैं। देवेंद्र कादियान का यहाँ पर बड़ी सी माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। यहाँ देवेंद्र कादियान का बड़ी सी माला के साथ स्वागत करते हुए गांव के बुजुर्ग, गांव के युवा देवेंद्र कादियान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और लोग जो है हाथ हिला के सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। विकास में, गाँव हल्के के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा आपका बेटा। सभी का मैं दिल की गहराइयों से एक बार देख फिर सकते आपका हैं हार्दिक कि अभिनंदन, इतना लेट होने के बावजूद जो है लोग यहाँ पर यहाँ देवेंद्र कादियान की बात सुनने के लिए पहुंचे हैं। इनको ऊर्जा दी, इनको ताकत दी, क्योंकि समाज सेवी के लिए, आपके बेटे, आपके भाई के लिए सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो मान सम्मान, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका साथ। यही चीज एक समाज सेवी को ताकत देती है, ऊर्जा देती है। थोड़ा पीछे यहाँ पर गांव के लोगों द्वारा नारेबाजी करते हुए देवेंद्र कादियान आगे बढ़ो, देवेंद्र कादियान आगे बढ़ो, देवेंद्र कादियान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये युवा साथियों का भी जोश और ये हमारे गांव की सारी सरदारी का जोश काबिल तारीफ है। सारे युवा साथी भी दिल से आवाज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये हजूम है लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस भी गांव में जाते हैं लोग बढ़ चढ़कर भाई देवेंद्र कादियान का स्वागत कर रहे हैं। फूल मालाओं से, माला पहनाकर, नोटों की मालाओं से। मैं खास तौर पे देख रहा हूँ मातृशक्ति का सिर पर हाथ रखकर जो आशीर्वाद है वो भूलने लायक नहीं है। सिद्ध करती है कि इस गन्नौर के अंदर नेता नहीं बल्कि बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। हमारे बीच में आपको अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग देना चाहता है। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उनके कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं किसी भी गांव में जाते हैं, हमारे युवा साथी हमारी मातृशक्ति है, भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो उनका जोश देखते ही बनता है। भाई देवेंद्र कादियान सबके दिलों में बस गया है। देवेंद्र कादियान सबके दिलों में बस गए हैं और यहाँ स्टेज से जो है लगातार गांव के लोग उद्बोधन के माध्यम से जो है लोग अपना समर्थन देवेंद्र कादियान के प्रति दे रहे हैं। आने वाली है, इसमें देवेंद्र भाई साहब का मनोबल बढ़ाए, उन्हें अच्छी वोटों से जिताए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। एक बार मैं युवा साथियों से अनुरोध करता हूं, थोड़े पीछे हो जाओ। भाई मातृशक्ति बैठी, इनको परेशानी आ रही है। आप सम्मानितों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, थोड़े पीछे हो जाए। हमारी मातृशक्ति बैठी है। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज जी मौजूद हैं, वो भी 2 मिनट अपने विचार रखेंगे। गर्ल्स जैन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मनोज जी। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हैं? विचार किया इस बात पे? हर 5 साल में हम एकत्रित होते हैं, किसी का समर्थन करते हैं, किसी को वोट देते हैं, लेकिन इस बार एकत्रित होने का एक अलग मकसद है। इस बार उस बेटी के चेहरे पर मुस्कान चाहते हैं, इस बेटे के चेहरे पर मुस्कान चाहते हैं, इन युवाओं के चेहरे पर मुस्कान चाहते हैं, इन माओं का स्वाभिमान चाहते हैं कि हाँ, हम भी एक बेटा ऐसा पैदा कर सकती हैं जो एमएलए बन सकता है।
2-3 दिन से कुछ अलग अलग चर्चाएं हैं। मैं अपने मन से और युवा साथियों की तरफ से कहना चाहता हूं, देवेंद्र भाई, ये हैं वो हमारे 100 करोड़ जो सामने है ना, ये हैं हमारे वो 100 करोड़ जो असल में काम आएंगे। और ये 100 करोड़ उस 100 करोड़ से कहीं गुना ज्यादा काम करेंगे। ये है हमारी असल ताकत। विरोधी षड्यंत्र पर हैं, हमें थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। ये जो सम्मेलन है, ये जो सभा है, ये मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं की सभा है। आप सभी को योजना बनानी पड़ेगी। अपने दिन का हर 1 घंटा, आप किसी भी काम में हैं, आप रसोई में हैं, भैंसों के साथ हैं, ट्रैक्टर पर हैं, खेत में हैं, कहीं भी है, सिर्फ फोन पर 1 घंटा देना शुरू करो अगर असल में भाई देवेंद्र के हाथ मजबूत करना चाहते हो तो। आसपास के हमारे इस गन्नौर इलाके में हर एक साथी के कम से कम 100, 200, 400, 50, 500 दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, जानने वाले हैं। और अगर आपको यूं लगता है कि शायद मेरे तो कम है, अरे है भाई, अपना फोन निकालना, स्क्रॉल करना, आपको गन्नौर के गांव के आपके साथी मिलेंगे। उनके साथ अपने विचार साझा करना, इस व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के बारे में बताना कि कैसे ये दिन रात मेहनत करके आज यहां तक पहुंचा है और मेहनत करने के बाद यहां तक पहुंचकर भी आपके साथ है। ये अपने आप को विशेष नहीं दर्शाना चाहता, ये आज भी हमारे इलाके के बेटे बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, जनमानस की सेवा करना चाहता है। क्या मिलेगा ऐसा मसीहा? मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारा ये इलाका बड़ा धर्मपरायण इलाका है। हम व्रत करते हैं, त्योहार मनाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो साथियों, बुजुर्गों, ये मानो कि ये जो फल बैठा है, ये उस प्रार्थना और उस पूजा का फल है। आज वो भगवान स्वयं नहीं आ सकते, जमाना ऐसा है कि भगवान खुद प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए आज देवेंद्र के रूप में उसने हमारा साथी हमारे बीच में भेजा है। क्या ऐसे भगवान के प्रसाद का हमें सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या हमें इस नौजवान को अपने सिर पर, पलकों पर नहीं बिठाना चाहिए? फिर क्यों घूम रहा है ये हर शाम, हर सुबह, हर दोपहर? फिर क्यों धक्के खा रहा है? क्यों बता रहा है कि मैं आपका बेटा, मैं आपका बेटा, मैं आपका बेटा? आप क्यों नहीं बता देते गन्नौर को कि ये हमारा बेटा? बदलो इस दृष्टिकोण को। अगर असल में बदलाव चाहते हो, असल में आप देवेंद्र के संरक्षक हो, पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, बेटे हो, तो आज से जुट जाओ, विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे दो। तो साथियों, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी हूं। 30 साल से गन्नौर के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में काम कर रहा हूं। आजकल जैन गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। 30 साल की मेरी सेवा एक तरफ और 8.5 साल के इस भाई की सेवा एक तरफ, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसीलिए मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं। मैं किसी राजनेता की मंच पर नहीं खड़ा हूं, मैं एक शिक्षा के पुजारी के मंच पर खड़ा हूं। मैं उस व्यक्ति के मंच पर खड़ा हूं जो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की चिंता करता है। बस ये एक विचार मेरा और इसका मिलता है, इसीलिए मैं इस मंच पर खड़ा हूं। तो ऐसे मसीह का मसीहा के लिए दिन रात लगा दो, अपना एक एक पल लगा दो, सारा वक्त लगा दो, दिल जान लगा दो, तब जाकर हम कामयाब होंगे और विरोधियों को हम पस्त कर पाएंगे, चित कर पाएंगे। और देवेंद्र भाई, गुमान करना इस 100 करोड़ पर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी इस समय सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि बहुत लंबे समय से गांव की सरदारी मातृशक्ति युवा साथी उत्सुक है अपने बेटे, अपने भाई के विचार सुनने के लिए। तो अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे, अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। चेयरमैन साहब ऊपर आ जाओ। जय भाव, अरे आओ, इधर से आ जाओ। अरे इधर से अभी आप सबको जयकारे के साथ मैं बोलूंगा, जय दादा खेड़े की आपने जयकारा लगाना और मातृशक्ति
कि आवाज तेज है कि नौजवानों की बुजुर्गों की एक चीज अभी चेक करनी है, पूरी ऐसे मुट्ठी बंद करके जोर से जयकारा लगाना है। जय दादा खेड़े की आवाज को चंडीगढ़ तक पहुंचाना है, ये तो पानीपत टोल टैक्स तक की जय दादा खेड़े की बड़ी बात। में फाइनल राउंड है फिर। जय दादा खेड़े की सबसे पहले मैं इस मातृशक्ति को, इन माता बहनों को नमन नमस्कार करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 2 घंटे से ना गर्मी की परवाह, ना मच्छरों की परवाह और ना बारिश की परवाह, दाल ढोकली का भी टाइम गया, रोटियां का भी टाइम लगभग, ऐसी माता बहनों को मैं सिर झुकाकर उनको नमन नमस्कार करता हूं। सम्मानित मंच पर और मेरे समक्ष गांव कामी के मेरे पितातुल बुजुर्गों और बहुत संख्या में मेरे नौजवान साथी जो बाहर चौक से मुझे कंधों पे लेके आए, फूल मालाओं की बारिश के साथ लेके आए, ऐसे युवा साथियों को और इन बुजुर्गों को भी मैं धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। और भाई एक तो मेरा युवा साथी जिसको प्यार से समझाना चाहता हूं, मेरा छोटा भाई है, वो पता नहीं कौन सी मोटरसाइकिल थी, बुलेट, वो जो पटाखे पटकाने लग रहा था, भाई ये चीज अच्छी नहीं। वो कौन सा मन नहीं, मेरा मन कई बार उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन जो भी भाई था ये अच्छी चीज नहीं है। जब कोई सा पुलिस वाला होता तो चालान कट जाता पक्का। शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने भाई को समझा रहा हूं। सबसे पहले आप सबसे थोड़ा देरी से पहुंचा, उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। थर्रा गांव में कार्यक्रम था, उसके बाद चाय पानी के कार्यक्रम थे, तो वहां पर समय लग गया। मंच के माध्यम से और इस टीवी के माध्यम से आपने बहुत सारी चीजें देखी और सुनी, और सम्मानित मंच पे कुछ सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। हमारे बड़े भाई, आपके प्रधान बलराज सरपंच जी, पंडित सीताराम जी, पंडित हरिकिशन जी, रामकिशन जी, गिरधर नंबरदार जी, बलबीर प्रधान जी, एक्स सरपंच रोहतास जी, रणधीर सिंह जी, रणबीर का मेरा लग रहा है भाई, मैंने दिखे कम है, पंडित जगदीश जी, कटार सिंह नैन जी, बलवान जी, श्री राम जी, जय किशन जी, पाले राम जी, बलवीर सिंह जी, राम कुमार नंबरदार जी, रामेश्वर जी, उमेश सिंह जी, पंडित ओम प्रकाश जी, दादा प्रजापति जी, होईराम जी, बरमदत्त जी, धर्म जोगी जी, कृष्ण जी, प्रताप खाती जी, ईश्वर कश्यप, हमारे बड़े भाई सतीश जैन जी, सुनील लंबू और बहुत सारे ऐसे युवा साथी, ऐसे परिचित लोग जिनको आज से नहीं पिछले कई सालों से, लगभग 8 साल से 10 साल से बहुत सारे ऐसे कामी गांव के सम्मानित मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं। मास्टर जी समय सिंह जी नीचे खड़े हैं, जिनका इस कागज पे नाम नहीं है, लेकिन लंबे समय से मेरे दिल पे सबके नाम और चेहरे के निशान हैं। सब मेरे लिए सम्मानित। देखिए आज जो ये मंच सजा है, आपने इस एलईडी टीवी के माध्यम से, मंच के माध्यम से
मेरे बारे में, देवा संस्था के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी और देखी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इस टीवी में शायद कोई एक आधी चीज बढ़ा चढ़ा के दिखा दी हो। इस नौजवान ने अपने भाई के तारीफ थोड़ी ज्यादा करती हो, लेकिन पिछले 8.5 साल से जो कार्य देवा संस्था ने किए हैं, आपके भाई आपके बेटे ने किए हैं, मेरे को लगता है उससे कोई भी गांव, कोई हमारे बुजुर्ग नौजवान, हमारी माता बहन, हर किसी के कानों तक, हर किसी के आंखों तक, चाहे वो कूड़ा ढोने वाली सफाई की गाड़ी हो जो देवा संस्था ने हर गांव में दी, चाहे एम्बुलेंस सेवा की बात हो, चाहे इन बुजुर्गों को बैठने के लिए, इन माता बहनों के लिए जो बेंच दिए गए हैं, बाहर हर गांव में बस क्यू शेल्टर बनाए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों को जिनके घर में पैसे की कमी थी उनकी आर्थिक मदद की बात हो, खेलों में जो बच्चे आगे हैं उनको पैसे की मदद की बात हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं चाहे उनको जो पढ़ाई में अव्वल आए हैं उनको इनाम देने की बात हो, स्वास्थ्य मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, ऐसे सैकड़ों काम जिनको मैं गिनवाऊंगा तो बहुत सारा समय लगेगा। मैं इस मातृशक्ति को, इन बुजुर्गों को ये बताना चाहता हूं, ये सारे कार्य आपके बेटे ने और संस्था ने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना एमएलए, मंत्री, सरपंच, मेंबर बने, ये सारे कार्य करके दिखाए। लोग आपके बीच में आते हैं चुनाव के समय, जब चुनाव नजदीक होता है, जब 2 महीने रह जाते हैं, जब हम अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ते हैं, आपके प्रिय नेता फला 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 1/7/2024 से बीएससी कॉलोनी में अपना कार्यालय और निवास स्थान बना रहे हैं। गन्नौर वासियों से निवेदन है, किसी को कोई काम हो तो हमारे को यहां मिले। क्या बात है, 5 साल का मतलब 60 महीने, और 7वें महीने की पहली तारीख को घर भी बना लिया और कार्यालय भी। केवल 2 महीने में आपकी समस्या सुनने आए। 60 महीनों में से 58 महीने ना ये पता चंडीगढ़ में रहे कि करनाल में रहे कि विदेश में, लेकिन जब चुनाव आया तो आपको बोलते हैं आइए और समस्या बताइए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिछले चुनाव से पहले लगभग 8-8.5 साल पहले आपके बीच में एक 3 शब्द का नारा लेके आया था, नेता नहीं बेटा। मैंने कहा नेता नहीं बेटा, ये 3 शब्द का नारा क्यों लाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, एक गरीब किसान का बेटा जिसने एक छोटे किसान के घर में जन्म लिया, जिसके घर में ना पैसों का जुगाड़, थोड़ी सी जमीन, जिसने किसानी करी, सरकारी स्कूल से 10वीं क्लास, मोई माजरी स्कूल से 12वीं क्लास, गवर्नमेंट स्कूल गन्नौर से आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। गांव से निकले, शहर की तरफ गए, किराए पे मकान, ना कोई काम ना कोई नौकरी, नौकरी का कागज लेकर 2 साल 2.5 साल इन नेताओं के पीछे धक्के खाए कि मुझे नौकरी दिला दो। किसी ने कोई नौकरी नहीं दिलाई।
अपना काम किया, कभी सब्जी बेच दी, कभी जूस की दुकान कर दी, कभी दूसरी दुकान, हर छोटे काम, फिर एक छोटा ढाबा बनाया, फिर दूसरा ढाबा बनाया। जो आज ये मन्नत ग्रुप और मन्नत हवेली ढाबा आप देख रहे हैं, ये कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। ये उस किसान के बेटे ने हर दर्द को, हर तकलीफ को खुद में से महसूस किया है। जब सोनीपत में पहली बार आया, एक भी आदमी देवेंद्र कादियान को नहीं जानता था। पहली बार मुरथल में आया, एक छोटी सी दुकान किराए पे लेनी थी ढाबे वालों के पास। सुखदेव ढाबे पे गया, आहूजा पे गया, झिलमिल पे गया, पहलवान पे गया, लेकिन किसी ने किराए पे खोखा भी नहीं रखने दिया। क्यों नहीं रखने दिया? बोला भाई कौन से गांव का है? मैं कहा भाई बजाने का। बोला के बिरादरी है? मैं कहा या है। बोला को ना मिलता भाई। क्यों ना मिलता भाई? बोला चौधरी है, कदे आड़े बैठ जा, किराया ना दे। मेरे को किराए के लिए खोखे की जगह भी नहीं दी गई, लेकिन आपके बेटे ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मिलाकर 11 और 13 ब्रांच आपके बीच में। लोग कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भाषण देते हैं कि ये जो ढाबे हैं इनके अंदर नशे की तस्करी होती है, ट्रक आते हैं जाते हैं। ये कामी के सारे सम्मानित लोग बैठे हैं। आपने मन्नत हवेली पे रोटी, पराठे, दाल मखनी, शाही पनीर मिलती है कि नशा मिलता है? ये नेता लोग वोट के खातिर आपके भाई और बेटे पे उंगली उठाते हैं। मैंने कहा नेता और बेटा का फर्क है। बेटा वो जिसने किसान का दर्द समझा हो, बेटा वो जिसने बेरोजगार युवा की पीड़ा को समझा हो, बेटा वो जिसने रेहड़ी वाले की पीड़ा समझी हो, दुकानदार की पीड़ा समझी हो, जिसने इन गरीबों की पीड़ा समझी हो, मैंने उसको बेटा कहा। और नेता वो जो 10 साल जिसको आपने मौका दिया, 10 साल उसको मौका दिया, और कम से कम 25 साल उसके पिताजी को मौका दिया। 5 बार मंत्री, एमपी, बड़े बड़े पद पे, और वो कांग्रेस का नेता स्वयं मुख्यमंत्री की कुर्सी के बराबर कुर्सी। और ये खंबे में देखो, जहां देवा एम्बुलेंस का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, उस नेता ने अपना नाम छाप दिया, उसको दबा दिया ताकि किसी को समय पे एम्बुलेंस ना मिले। पूछो सारे गांव में क्यों भाई खंबे में ऊपर लिखा जा सकता था, एम्बुलेंस का मोबाइल नंबर क्यों दबाया गया? किसी ने नहीं पूछा। खंबे के ऊपर जो है देवा फाउंडेशन का नंबर लिखा क्या हुआ ऐसे था, ओछे कामों से पेंटिंग करते हुए कुलदीप शर्मा राजनीति का नाम चलती है लिखा क्या? हुआ है, जिसकी ये आपके सामने जिसकी खंबा, आवाज जो है इसके नीचे देखो लाल कलर का क्या लिखा हुआ था? देवेंद्र कादियान ऊपर जो खाली वो है, उठा वहां रहे हैं, लिख आवाज सकते उठा रहे थे। हैं। और यहाँ पे इस खंबे के ऊपर इसको ही जो मैंने है, नेता कहा, आपने ये जिसने सोने की चम्मच मुंह में लेके जिसने जन्म आप देख लिया। सकते हैं यहाँ किस जिसको तरह ना की किसान राजनीति पीड़ा को पता गन्नौर है, में देखने ना को मिल गरीब रही है। आदमी की पीड़ा को पता है, ना दलित आदमी की पीड़ा को पता है। इसको मैंने नेता कहा। उस नेता ने गांव में सिर्फ एक ठिकाना, आप देख 2 सकते हैं ठिकाने, यहाँ पे किस तरीके से ये सिर्फ ज्यादा पेंटिंग से की गई ज्यादा है। एक घर में, देवा 2 घर फाउंडेशन में की जो अपने एम्बुलेंस का नंबर यहाँ पे लिखा गया संबंध था, रखे, उसके उन्हीं के घर ऊपर में आना ये जाना, कांग्रेसी नेता का नाम उन्हीं लिखा के घर हुआ में है। फायदा और पहुंचाना, ये नौकरी किस देनी, तरह की राजनीति उन्हीं यहाँ से गन्नौर सारे में गांव अभी का से देखने ठेका को मिल देकर रही है। उनसे सलाह आगे आने मशवरा वाले करना समय में किस कि तरह की बताओ भाई राजनीति चौधरी होगी, साहब, ये तो समय पे पता चलेगा। बता भाई फलाने के देवेंद्र तेरे कादियान गांव में इसी फलाना बात का, को उठाते के होते वाल्मीकियों का, के होते धनकों का, के होते खातियों का, उसी एक घर को, 2 घर को पूरे गांव का ठेकेदार बनाया कि नहीं बनाया? वैसे कह रहा हूं। देवेंद्र कादियान यहाँ एक नेता के उसी बारे ने का बनाया, जिक्र कर रहे हैं और कि ये जो वही सिर्फ नेता है 1 या 2 घरों में जिसने ही इन अपनी बुजुर्गों से, पहचान बनाते हैं हमारे और उन्हीं इन के माध्यम से पूरे काका, गांव ताऊ, को दादाओं से जो है गांव की BST राजनीति करते हैं, कॉलोनी गांव में का पैर दबवाता जो था। हालचाल पूछते हैं। पैर दबवाता था, क्यों कह रहा हूं? लेकिन देवेंद्र कादियान कह दबवाता। रहे हैं कि वे सभी के पैर दबवाता साथ था, बराबर का इसलिए बर्ताव दबाते थे ये करते हैं। पैर। इस दौरान किसी का देवेंद्र पोता, कादियान
किसी का बेटा कांग्रेसी नेता द्वारा किसी की पैर बेटी दबाने वाली नौकरी के लायक हरकत के बारे में हो भी जाए लगातार तो जिक्र दो करते ही हैं। रास्ते थे उस टाइम नौकरी के, या तो भाई कि मैं घर धरती बेचो, नोट इकट्ठे करो, या फिर उड़ा जाके बीएसटी में उसके पास दबाओ। ये उनके द्वारा नौकरी दी जाने पर भी चोट कर रहे हैं। झूठ बोल रहा हो तो भाई रोक दो। अगर भाई नेताजी झूठ बोल रहे हैं, देवेंद्र भाई झूठ बोल रहे हैं। ये परिभाषा है नेता की, जिसको इतने बड़े बड़े पदों में रहे, गांव में ये सभा, लेकिन किसी इस गरीब सभा में आदमी लोग के इतनी लिए, भारी संख्या में जुटे किसी हुए हैं और दलित देवेंद्र परिवार कात्यायन के के लिए, विचार जो है जिसके वो पास लोग 100 सुन रुपए भी रहे हैं। कन्यादान इस देने का भीड़ में जिक्र अगर नहीं देखा है। जाए तो जवान हैं, आपका गुआंढ है बुजुर्ग कुराड़ गांव हैं, में महिलाएं हैं, सभी प्रोग्राम था। बच्चे हैं, सभी देवेंद्र आज से कात्यायन 10-12 के दिन प्रति पहले अपना प्यार दिखाते हैं। कुराड़ गांव का बेटा, हमारा सोनीपत का, हरियाणा का, इस देश का बेटा सुमित वाल्मीकि दलित परिवार से आता है, लगातार 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत के आया है। उसके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था कुराड़ गांव में। बता रहे हैं कि वहां पर सारा गांव राम कुआं सारे वहीं थे। किस प्रकार से और 1,51,000 जिक्र रुपए किया का वो भी सहयोग मंच दिया में गया बैठा था और बुलेट और मोटरसाइकिल उस टाइम इससे हमारा पहले भी जाना दी हो गई। गया। लेकिन एक नेता हमने के उस द्वारा बच्चे का वहां पर सम्मान 1 किया, रुपए का 1,51,000 के सहयोग नहीं दिया गया, चेक जबकि के उनके साथ। सहयोगी द्वारा 1100 रुपए का सहयोग जो दिया गया उसका ही पिछली बार मेडल लेके आया था, उस बेटे को बुलेट दी थी, बीच में वो एशियन में गोल्ड लेके आया था तो उसको स्कूटी दी। मंच से अनाउंसमेंट हो रही है कि देवेंद्र कात्यायन ने 1,51,000 का चेक, पहले बुलेट और फिर स्कूटी, 3 इनाम दिए थे। बार बार 3 बार बोला गया। वो जिसके हाथ में माइक था वो भी समझ गया, बोला भाई आज फंस रहा है, कई बार दुरात गया। बोला क्या मैं देगा जागा कुछ ना कुछ। जून सा उसकी कहला रहा था ना, तो वो उसने सलमाते ने 1100 रुपये दिए, काट गए, उसमें तो कुछ नहीं लिखा। अरे भाई, देश का बेटा ओलंपिक में मेडल, क्या देवेंद्र कात्यायन के पास पैसे हैं? उसके पास नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? उसके शरीर में बटन नहीं है। 100 रुपए भी देने का गरीब आदमी के नाम पे बटन नहीं उसके शरीर में। उसके अंदर बटन है सिर्फ पैसे लेने का। शाम को 11 बजे 12 बजे आजकल नूना पूछता कौन से गांव में के ब्योत है, अपनी गाड़ी वाले ने पूछा कितनी माला आई है, कितने पीछे गिनी हो बे, माला और पैसे गिनता है। और आपका बेटा, आपका भाई डेली अपने मोबाइल में देवा एम्बुलेंस ग्रुप में ये देखता है, आज एम्बुलेंस सेवा 25 परिवारों ने, 30 परिवारों ने, 28 परिवारों ने, 22 परिवारों ने आज उसका लाभ उठाया, इतने लोगों की जान बचाई। ये फर्क है नेता और बेटा में। ये फर्क है जिसने गरीबी झेली हो, और ये फर्क है जिसने सिर्फ और सिर्फ चमक देखी हो, जो राजा महाराजा के घर में पैदा हो। ये फर्क है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ नेता और बेटे के बीच में है, और ये माता बहन हमारी बेटी बैठी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या एमएलए बनने के लिए, क्या मंत्री बनने के लिए, क्या मंत्री के घर में जन्म लेना या उस मास की कोख से जन्म लेना जो नेता के घर में है वही जरूरी है, या कोई गरीब माँ भी नेता पैदा कर सकती है, एमएलए पैदा कर सकती है? इस बात का आपने जवाब देना है 5 तारीख को कि हाँ, किसान, गरीब किसान का बेटा भी एमएलए बन सकता है। इस बात का जवाब आपने देना है। और एक बात इन बुजुर्गों को और हमारे भाइयों को बताना चाहता हूं, अपने भाई हैं लेकिन फिर भी मेरे मन की दिल की बात है। देखिए, उस नेता ने 3 तरीके के भाषण ढूंढ के लेके आया है। गांव का भाषण है, जो जीटी रोड से इस तरफ की बेल्ट है, यहां का भाषण अलग है, खतरे का भाषण अलग है, और शहर का भाषण अलग है। हमारे बीच में सतीश जैन जी, जैन साहब एक बार आइए ना।
सतीश जैन जी को जानते हो? अरे कोटे वाले सब जानते, लाला जी हैं, इसलिए याद आ गया और आज मेरे को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और कई बार कामी गांव के सम्मानित व्यक्ति कहते थे भाई जैन साहब का गांव से जब कोटा था 8, 7, 10 साल पहले, मुझे नहीं पता, बैठिए जैन साहब। कहने का मतलब यह है, गांव में आएगा, आपके बीच में भाषण देता है, चौधरी साहब अपनी चौधर वापिस लेके आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपना सीएम बनाओ। आपको बेवकूफ बनाता है, सीएम की कुर्सी का लालच देके चौधर दिखाकर ये कहता है पिछली बार मेरी दुकान बंद हो गई थी, हटके जमा दो। उसके कहने का मतलब ये है, कोई कुर्सी का सीएम का या उसका अपने नेता का मतलब नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर बोलता है मेरा नेता ये, मेरा नेता वो। अरे भाई मान लिया तेरा नेता यो है, लेकिन यो नेता 5 साल पहले इसे सोनीपत से एमपी का इलेक्शन लड़ने आया था, तन्ने को भी खोदी थी, इसकी खोदी थी ना खोदी थी। उसको हराने का किसने काम किया? उस सीएम चेहरे को जिसको कहता कि मेरा नेता मेरा नेता। इसका मतलब ये बहरूपिया है, इसका कोई नेता नहीं है। ये उस नेता की आड़ में कहता है मेरी दुकान दोबारा जमा दो। समझ में ना आई हो तो और खोल के बता दूं। इसलिए उसका असली चेहरा यदि देखना हो तो भाषण सुन लेना जाकर, कहां पर, या तो थेरिया में सुन लेना, या भुर्री में सुन लेना, या सांदल कला में सुन लेना गुजराड़ी में, और या भाई सजातपुर में जाके सुन लेना। उसका भाषण कामी के भाषण से मैच नहीं होगा। वहां जाकर बोलता है अरे भाई आपका बेटा आपका भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे, अपने दम पे कांग्रेस में हो, मेरा अपना कद है, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। समझ गए नहीं समझे? वहां अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाता है और शहर में जब जाता है, जैन साहब बैठे हैं मंडी में बैठकर बोलता है, बाजार में बैठ के व्यापारियों के बीच में कि लाला जी वोट थोड़ा सोच समझ के गिरियो। बोला क्यों भाई? बोला देख लियो कदे गुंडा का राज आ जाए। किसान के बेटे को गुंडा बताता है गन्नौर मंडी में जाकर। क्या मैंने किसान के घर में जन्म लिया है इसका मतलब गुंडा होता है? आपसे पूछ रहा हूं ताऊ दादाओ। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो गन्नौर में किसी भी दुकान वाले से पूछ लो, यदि हर जगह जाके ये ना बोलता हो कि भाई देख लियो कदे गुंडा का राज आ जाए, गुंडे को वोट डाल दो। क्यों भाई? एक आदमी जिसने रेडी से लेके, छोटी दुकान से लेके, एक छोटे ढाबे से लेके आज इतना बड़ा व्यापार कर रहा है, वो गुंडा हो सकता है? 8.5 साल में जिस पे कोई सुई के नोक बराबर भी निशान ना हो, 1 महीने में इस चुनाव के सीजन में वो गुंडा बन गया। इस बात का जवाब आपको देना। वो केवल चेहरा बदल के घूम रहा है। हमारे वाल्मीकि भाई बैठे हैं, रविदास समाज के, धाड़क समाज के भाई बैठे हैं, आपके बीच में, आपके मोहल्ले में जाके बोलता है कि भाई प्लाट मिलेगा ना मिले, सरपंच ने दिए ना दिए। वहां पर सबको रात को प्लाट बांटता है। जो भी गरीब आदमी आ जब आते प्लाट दे दूंगा, मैंने वोट गिर दो। कोई प्लॉट नहीं भाई। 10 साल जब तक मैंने बढ़ाया था, जब प्लॉट की दरें थी, 15 साल से आपके बीच में है, उससे पूछो अरे भाई एक महीने में कौन से प्लॉट बांटा है जब तेरा मौका था, जब ना दिए। इन हमारे बुजुर्ग अभी कब है कान में खुशर खुशर है। इन बूढ़ा रखे है बोला ताऊ के पोता के कौन सी क्लास में है? बोला 14वीं में है भाई। बोला फिर इसकी नौकरी पक्की, सब तो पक्की कर लाग रही। किसको तो पूछ ले कान में, जुड़ से ने भी कौन बनेगा है, उससे नौकरी देगा वो। उसको बता देना नौकरी इस सरकार में मिलती है जो आखिरी लाइन में गरीब परिवार का बेटा बेटी जो पढ़ाई में होशियार है, जिसमें काबिलियत है, उसको नौकरी मिलती है।
वो समय चला गया जब नोट की गठड़ी से नौकरी मिलती थी या बीएसटी में जाकर उस नेता के पैर दबाने पड़ते थे 2 साल 3 साल। वो समय जा चुका है। अब ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। यहाँ हर उस गरीब घर में दीवा जलता है जिसके घर में ना पैसे है ना खाने का जुगाड़ है, लेकिन उसका बच्चा होशियार है तो उसका अपने आप दीवा जलता है। इसलिए ये सारी बातें हैं। थोड़ा लंबा बोल गया, लेकिन मेरे अपने भाव थे, भावनाएं थी, अपनों के बीच में हो। और वैसे भी इब्तिकाम बराबर काम हो रहा है। एक डाबा न्यून और एक न्यून भाई बीच बचाड़े एक कुरान काम ही आ रहे हैं। 7 जगह काम हो रहे, बलराज हंस लाग रहे। ये मेरी पूरी होनी, 13 नंबर मेरे बाद में 5 मिनट का हो रहा है। फिर मैं दिखूंगा क्या मिनट बोलेगा तू भी। मेरा हमारे अंकल का लाड ठंडा है, इसलिए बीच में बोल रहे, मिलते रहे। इसलिए देखिए, एक बात बहुत जरूरी रहेगी बतानी। वह बात है कोई राजनीति की नहीं, वह गांव की है बात। गांव की बात है या थारी है मेरी। हमारे कई काका ताऊ दादा और भाई ये नौजवान साथी नए जो थोड़ा मुलाकात कम हो है, काम का मौका हो है भाई, बतेरे में नहीं से मिल रहे हैं भाई। देख देवेंद्र, हमारे बस की रोज रोज की हाजिरी नहीं है। कोई अपने जमींदार में बिजी है, कोई काम धाम में, कोई नौकरी में। ऐसे बहुत सारे सम्मानित हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी जो मेरे को मिलते रहते हैं। जबकि वो सब लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में एक दुविधा है कि भाई छोरा बढ़िया, इसके विचार कामल, लेकिन इसके जुड़ते जावे पर्ची बिगड़ दे। पर मारे गांव का फलाने का छोरा, एक परले पाने में उसका छोरा, बाल्मीकिया में उसका छोरा, एक उसका छोरा, बोला घने खास है। कदे आड़े को मारी पर्ची की आई भी ना हो, काल ना को काम पड़ जा और इन्हें के थ्रू जाना पड़े। यो सब के दिमाग में बात चल रही। लेकिन सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, मैं आपको इस मंच से, खुले मन से एक बात बोल के जा रहा हूं। कामी गांव में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं, गरीब भी हैं, किसान भी हैं, सारे हैं छत्तीस बिरादरी के, जिन्होंने इस नौजवान को, इस भाई बेटे को बरता हुआ है, जिन्होंने काम लेके देख रखे हैं, मेरे पास आए हैं। एक बार उन तक तसल्ली कर लियो। अगर किसी का भेदभाव करे हो या दूसरे नेताओं की तरह फोन करके गांव में नू पूछियो भाई किसका क्या ब्योंत है, यो अपना है ना है, ऐसा मेरी किताब में कोई पन्ना नहीं है। हर आदमी मेरे से सीधा है। जो भाई 10 हाजिरी फालतू ला ले वो भी अपना भाई है, मौके की बात है, उसका स्वभाव है। और जो भाई साल में 6 महीने में आवे वो भी हमारा सम्मानीय है, उसका भी उतना ही मान सम्मान है। लेकिन कोई इस बात के दिमाग में मत रखियो अगर भाई मेरे में और फलाने के छोरे के में कदे को फर्क पाओगा। जिन व्रत रखा उन तसल्ली कर लियो। और भाई इबे एक बिना रहे चुनाव का ई व्रत के देख लियो। वो टेलीविजन में एक मशहूरी आया करती, ये हमारी काकी ताई बता देगी, इन बुढ़ा ने मेरा ना याद रखना है। एक मशहूरी आया करती, साबुन की थी शराब की नू मेरा याद नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी साबुन की आया करती। तो भाई घड़ी साबुन है, जिन्हें इस्तेमाल करेगा उन्हें तसल्ली कर लिया। भाई छोरा किसा काम करने वाला के बिना काम करने वाला है, और एक मिनारे रही भी इस्तेमाल करके देखे। इसलिए अरे भाई एक कई दिन तक उनका अगर भाई इतनी सारी बात बता दी, काम की बात नहीं बताई है। बूढ़े नुकाएंगे भाई मेरे बेटे ने जो बताने की थी वह बताई। इनके सारे दिमाग, सारा के दिमाग का चल रहे है। तड़के सांझ फोन बजे और टिकट का के व्यवस्था है सही नहीं सर। 67 आदमिया की आगी, 23 की रहेगी। राई गन्नौर बड़ौदा रुकी। और वह घड़े घड़े बड़े बड़े जिक्र चल रहे हैं। कई
आदमी जो उनसे बिल्ला में बैठ रहे थे वो लेकर के कहा हाँ भाई 100 करोड़ दे दिए कांग्रेस में और 100 करोड़ दे दिए दूसरी पार्टी में। अरे भाई कांग्रेस वाला भी टिकट मारी मर्जी थे और यह भी मारी मर्जी थे। घने बड़े बड़े बोरी वाले आ रहे हैं मार्केट में। 5-6 तो दुकान बंद हो गई थी, परमात्मा ने जड़ते काट दिए थे, याद है भूल गए? परमात्मा ने नीचे तो मूछ दिए थे, लेकिन फिर एक और उन्हें मतलब मुंडी काट गया है, बोला 100 करोड़ उड़ा बांट दूंगा। भाई तेरे 100 करोड़ का भी मेरा, 200 का भी मेरा, भूमाफिया हो, सारा सोनीपत खोखड़ा कर रखा है, सबने मेरा है। लेकिन 100 करोड़ में 200 करोड़ में टिकट तो हो जाएंगी, लेकिन असली टिकट तो यहाँ बैठी भाई, असली टिकट तो यहाँ बैठी है। और दूसरी बात है भाई, किसो पार्टी की कतिया नुगार है माथे माँ की फूट रही होगी तो अलग बात है ना। तो सारी पार्टियां ना मेरा कौन जिताऊ, कौन वफादार है, कौन गद्दार है। एक गद्दार का तो नाम इब्नू था जो संधु का मेरा नेता मेरा नेता। एक गद्दार और आ गया लाइन में, आ गया कि नहीं आ गया? रुका पड़ रहा है, तड़के रुका पड़ा राईगा तो बारा कन्नौर का, फिर गुआने बेरा ना भाई कितना बड़ा ट्रक ले रहा है नोटा का। ईब के ना 1 करोड़ ही देखने भाई, कितने करोड़ है वह ईडी दाओ की बाद में। पहला ये कन्नौर हल्का देखा कितने करोड़ है, ईडी आओगी इलेक्शन के बाद, पहला कन्नौर हल्का देख लेगा कितने करोड़ दे रहे। इसलिए ये सारी अफवाहें हैं, हमें परमात्मा पे भरोसा है और पार्टी जन भावनाओं को देख के टिकट देती है। हर आदमी को पता है भाई फलाना आदमी चुनाव जीत सकता है, किसने ईमानदारी से पार्टी की सेवा करी, कौन फर्जी है। ऐसे भूमाफिया, ऐसे चरित्रहीन लोग कभी भी नहीं बन सकते इस कन्नौर में। मैं शकल नहीं दिखाऊंगा, जब बन गया तो भाई वादा है नहीं बन सकते, क्योंकि टिकट का खेल हो सकता है, लेकिन असली खेल ये है यहाँ पर, असली चीज ये बैठे हैं यहाँ पर। टिकट का खेल तू खेल ले भाई, लेकिन असली चीज यहाँ बैठी, कभी नहीं हो सकता। इसलिए ना घबराना है। अरे भाई मैंने तो पहले कह रखा है, मेरी गाड़ी की पछली सीट की गोज में फार्म भर के रखा, फोटो भी चिपका रखे। बस एसडीएम दफ्तर में दे गाना है, गाड़ी में अगला गेर है पछला सही नहीं। इसलिए थोड़ा लंबा बोल गया, उसके लिए नामांकन की बात भी साफ की है। मैं तो आखिर में एक लाइन बताना चाहता हूं। देखो हमारे कई नाम तो लेना ठीक नहीं, हमारे अपने भाई, उनका भाई दूसरी पार्टी की कैसेट चढ़ रही है। मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई, देखो देख थारा भाई किसान का बेटा, ये खेले खाए हो गए, सबके काम देख लिए, सारे खेल देख लिए, सब कुछ हरिया क्या ऐसा नहीं। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूं भाई, जन्म लेने का अधिकार सबका है, मेरा भी जन्म लेने का अधिकार है। मैंने गर्भ में मत मारियो भाई, मेरे को गर्भ में मत मारना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र कादियान की यहाँ पर लोगों से मुझे गर्भ में मत मारना, मुझे भी जन्म लेने का अधिकार है। यहाँ पर गांव के एक व्यक्ति द्वारा जो है कुछ कहने की बात है। यहाँ पर एक गांव का व्यक्ति है, वो कुछ कहना चाहता है, देखते हैं वो क्या कहेंगे, किस तरह की बात है। ये हमारे परिवार के 2 बार खड़ियाड़ है सेमी, एक खड़ा लेकिन लेकर न खड़ा सारे, मतलब जब ये कोटा ले लेते ना, जब ये बाटिया करते रहे ईमानदारी से बाटिया करते, वह कहना चाहूँगा मैं। जैन साहब जी इतनी बड़ी आबाद है, मतलब बहुत साल पहले यहाँ आए थे, इसको छोड़ना मतलब ये इतने बड़ी आदमी है, मतलब ये 10-20 हजार के वोटा के मलिक है।
यहाँ पर गांव के व्यक्ति हैं, इन्होंने कुछ बात बोली कि एक जैन साहब हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि 20,000 वोटों के मालिक हैं। तो यहाँ पर देवेंद्र कादियान ने आज कुछ अपने पत्ते खोले हैं और स्टेज से कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे लग रहा है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो इनकी गाड़ी के पीछे जो है, इनकी गाड़ी के पीछे जो है फार्म भरा हुआ रखा है और सिर्फ एसडीएम कार्यालय में उसको देने की जरूरत है। मैं बोलूंगा नेता नहीं है, आपने बोलना बेटा। देवेंद्र कादियान नेता नहीं है। धन्यवाद जी देवेंद्र जी। जहाँ देवेंद्र कादियान बड़ी संख्या में लोग तो जुट रहे हैं, लोगों के दिलों में भी आपको जगह मिली हुई है और आपने कहा भी है कि टिकट तो ये लोगों के जो है दिखाई दे रही है, सामने दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोगों का हुजूम है, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, ये हमारे ताऊ दादा, चाहे नौजवान साथी हो, मातृशक्ति हो, इन जब से ये एक लिस्ट आई है कल से, इन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए इस बात को खोलना ज़रूरी था। और इनको जो इनके मन के भाव हैं, जो इनका चिंतन है, उस चिंतन को खोलना यहाँ ज़रूरी था और इनको ये बात बतानी ज़रूरी थी। एक भाई जो 100 200 करोड़ वाले आदमी या तो फिर धरती पर वही रहेंगे भाई, आप और हम कहाँ हैं। इसलिए इनको ये बात बताई है, असली टिकट ये लोग बैठे हैं वो है, वहाँ पर जिनसे वो 100 करोड़ वाली टिकट की बात करता है वो फर्जी टिकट है, उसका कोई आधार नहीं है। असली टिकट जो ज़मीन पे खड़ी वो है। और मुझे पूरा विश्वास, हमारी गन्नौर की जो टिकट है, राय की जो टिकट है, बड़ौदा हल्का की, यहाँ इस जिले में 2 जाट कैंडिडेट आएंगे, 1 नॉन जाट और है। तो हमें पूरी उम्मीद है, इन लोगों की जो आस और उम्मीद एक है वो पार्टी जरूर करेगी। अगले दिन कल परसों टिकट जरूर आएगी। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि मेरी पिछले सीट पे जो है फॉर्म भरा रखा है, सिर्फ फोटो लगाना और एसडीएम ऑफिस में दे दिया। बिल्कुल, ये मैं आज से नहीं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ कि भाई अब की बार इस कन्नौर की जो इनकी भावनाएं आज से 5 साल पहले टूटी थी। इनके मन टूटे थे, ये दुखी हुए थे, मेरे से भी नाराज हुए थे। अब ना इनके मन टूटेंगे ना दुखी होंगे ये लोग। इनको पता है अब की बार ये बेटा चुनाव जरूर लड़ेगा और मैं इनको विश्वास दिला रहा हूँ। अभी कुछ घंटों की बात है, आप चिंता मत कीजिए, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, ना आपको घबराने की जरूरत है। देश का जो मिजाज है, प्रदेश का जो मिजाज है, आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति आज देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए गन्नौर में भी वही चेहरा आएगा जो आम गरीब किसान परिवार से निकले। जो काम आप गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, सोशल के माध्यम से जिस प्रकार से आपने एम्बुलेंस सेवा चला रखी है, उसका एक नंबर आपने खंबे पे लिखा था, लेकिन एक नेता द्वारा जिस प्रकार से उसे मिटाया गया है, ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये केवल एक खंबा मैंने दिखाया है, ये बाई चांस ये मंच के सामने खंबा था और उस खंबे के नीचे दिख भी रहा है कि एम्बुलेंस का मोबाइल नंबर था। ऐसे कई हजारों खंबे, मेरे हिसाब से 30,000 खंबे इस गन्नौर में हमने एम्बुलेंस के नंबर लिखे थे। 30,000 में से लगभग 20-25 हज़ार ढक दिए ताकि लोगों को एम्बुलेंस के नाम पर, उस सेवा के नाम पे हमारा नाम याद ना रहे, हमारा उन एम्बुलेंस का संपर्क टूट जाए। ये गिरी हुई सोच है, उनकी नीच मानसिकता है, लेकिन उनकी मानसिकता का इलाज पिछली बार इस गन्नौर ने किया था। 11,000 के वोटों का सगन डाल के भेजा था, अब की बार 51,000 का तैयार रखा हुआ है और उसको यहाँ से देकर पूरा करनाल तक छोड़ते हैं। युवाओं के लिए आपने देवा फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा के लिए काम किया, इनको अपने अंदर जो है देवेंद्र कादियान दिखाई दे रहा है, बड़ी उम्मीद है आपको। देखिए, मैं हर मंच पे मोटिवेशन करता हूँ। जब देवेंद्र कादियान एक व्यापारी बन सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो हर गरीब का बेटा बढ़ सकता है। केवल इनको रास्ता दिखाने की जरूरत है। जो नौकरी में जा सकते हैं नौकरी में जाओ, जिनको प्राइवेट सेक्टर में जाना है वहाँ जाओ, खेलों में जाना है वहाँ जाओ, व्यापार में आना वहाँ जाओ।
तो इनको सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। सब में हुनर है, सब में परमात्मा ने शक्ति दे रखी है। तो सबसे बड़ा काम है इन नौजवान साथियों को रास्ता दिखाना। जो बेरोजगारी के हालत आज देश में, प्रदेश में और हमारे गन्नौर में है, उस पे सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। नामांकन की जो है आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हम क्या मान के चले कि देवेंद्र का जो है मेरे को जो मेरा मानना है, अगले 2 दिन में, 1 दिन में टिकट अनाउंस हो जाएगी। और जब मेरे सारे ये बुजुर्ग गन्नौर वासी कहेंगे, जो दिन इनको शुभ लगेगा उसी दिन सारे इकट्ठा होके हवन करा के अपना। हल्के की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो समय बहुत थोड़ा रह गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने अपने हल्के की जनता को मंच के माध्यम से सब कुछ कहा है, और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ। अब ये जो दौर है ये आप लोगों का है। आप अपने बेटे को चुनिए, जिस आदमी को कई बार मौके दिए, जिसके पिताजी भी कई बार रहे, उनको देख लिया वो केवल भेदभाव की राजनीति करते हैं। गांव में एक परिवार पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, उन्हीं का भला करते हैं, बाकी किसी का कार्य नहीं करते हैं। इसलिए आज जो दौर है वो बेटे का है, ना कि नेता का। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जो है 100 गज के प्लाट नहीं मिले, एससीबीसी के पास लोग रहने के लिए जगह नहीं है, आपको मौका मिलता है तो क्या ऐसे लोगों को घर बनाने? देखिए सरकार की स्कीमें, पंचायत की भी स्कीमें, बहुत सारे गांवों में पंचायती जमीन नहीं, उसका अलग तरीका है। लेकिन कुछ नेता ऐसे जो चुनाव के अंदर इन लोगों को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा, सबको प्लाट दूंगा। वो 10 साल उनके पास थे, सीएम की कुर्सी के बराबर का पद था, लेकिन 10 साल में उन्होंने कोई प्लाट नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। तो इसलिए ये सारे समझते हैं, हमारे दलित भाई भी समझते हैं, केवल वोट के लिए भटक रहा है, बहरूपिया है, चेहरा बदल के आया है, कोई प्लॉट नहीं, कोई नौकरी नहीं, सब कुछ। थैंक यू।